Hello students, I am Davinder Kaur. Welcome back to my channel Study Time with Davinder. The topic of discussion today, Ishwaran the Storyteller, is written by R.K. Lakshman of class 9's book Moments. R.K. Lakshman is known as Rasipuram Krishnaswamy Lakshman. He was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. He is best known for his creation, The Common Man, and for his daily cartoon strip, You Said It, in the Times of India, which started in 1951. R.K. Lakshman started his career as a part-time cartoonist, working mostly for local newspaper and magazines. Let's begin the chapter. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? Mahendra is the main character of the story, and जो रात में वो उठता है अपनी नींद से और वो एक क्लाउडी फॉर्म देखता है, एक फिगर देखता है. क्या वो एक घोस्ट था? सो लेट्स फाइंड आउट. द स्टोरी इज अबाउट अ जूनियर सुपरवाइजर नेम्ड महेंद्र एंड हिज कुक ईश्वरन. ये जो स्टोरी है, मेन कैरेक्टर महेंद्र एंड ईश्वरन की है, एंड ही इज अ कुक एंड द स्टोरी टेलर. महेंद्र हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर as it was the nature of his job. महेंद्र को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना पड़ता था बिकॉज उसकी जॉब ही ऐसी थी. सो ही वॉज अ सिंपल मैन एंड सो वर हिज नीड्स. मोरओवर, महेंद्र हैड द कंपनी ऑफ ईश्वरन, एन एक्सीलेंट कुक एंड द स्टोरी टेलर. यानी कि महेंद्र जो है उसको एक कंपनी मिल गई थी ईश्वरन की, जो कि एक एक्सीलेंट कुक भी था और एक स्टोरी टेलर भी था. Ishwaran was fond of reading thrilling Tamil stories during his leisure time. ईश्वरन जो था वो अपने फ्री टाइम पे थ्रिलिंग तमिल स्टोरीज को रीड करना उसको बहुत शौक था. Those Tamil thrillers influenced Ishwaran because he would narrate the stories to Mahendra by giving expressions and bodily gesture even for the smallest incident. It means जो तमिल थ्रिलर्स थी वो ईश्वरन को इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि जब वो महेंद्र को जो स्टोरी सुनाता था बाय गिविंग एक्सप्रेशंस एंड बॉडीली जेस्चर्स, इतनी ज़्यादा उसके एक्सप्रेशंस एंड बॉडीली जेस्चर्स होते थे कि वो उसको लगता था बहुत ज़्यादा सच में ऐसा ही कुछ हुआ था. इवन कि स्मॉलेस्ट इंसिडेंट भी हो उसको भी बहुत ही ज़्यादा जेस्चर्स के साथ, एक्सप्रेशन के साथ सुनाता था. So, the first incident Ishwaran narrated to Mahendra was about a mad elephant. At that time, Ishwaran was studying in high school. One day, while the students were playing on the ground, a wild elephant entered the school campus by breaking the walls. Children and the teachers ran to the roof of the building to save their lives. Later, Ishwaran took a stick from one of his teacher's hand and went near the elephant. और ईश्वरन ने क्या किया, उस मैड एलिफेंट को मारने के लिए टीचर के हाथ से स्टिक ली and went near the elephant. After approaching the elephant, ईश्वरन gave a sudden kick to the elephant's third toenail. और उसने क्या किया, जो स्टिक थी उसने सडन किक किया एलिफेंट के थर्ड टोनेल पे. As a result, elephant became unconscious and fell to the ground. और एलिफेंट क्या हो गया, बेहोश हो गया, बेहोश होके गिर पड़ा. On a full moon night, ईश्वरन started talking about ghost. और जो फुल मून नाइट था, नेक्स्ट जो स्टोरी उसने क्या बताई, ईश्वरन started talking about the ghost. और उसने घोस्ट के बारे में स्टार्ट कर दी स्टोरी सुनाना. He said that the place where they were living was once a burial ground. जहाँ पे वो रह रहे थे उसने बताया कि वो एक कैसी जगह थी, ब्यूरियल ग्राउंड. ब्यूरियल ग्राउंड मीन्स जहाँ पे जो डेड बॉडीज है उसे दफनाया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड ब्यूरियल ग्राउंड. ईश्वरन टोल्ड महेंद्र अबाउट द स्पिरिट दैट ही हैड सीन ऑन द फुल मून नाइट. उसने बताया महेंद्र को कि उसने एक स्पिरिट को देखा है, यानी कि घोस्ट को देखा है फुल मून नाइट पे. The ghost carried on
an unborn baby in her arms. This terrified Mahendra. इस चीज को, इससे वो महेंद्र जो था वो बहुत डर गया था, इतना ज्यादा that so much that he could hear a crying sound of woman outside his window while he was sleeping. वो इतना ज्यादा उसके माइंड में इतनी ज्यादा ये बातें हो चुकी थी कि वो उसके बारे में सोचने लग पड़ा था, एंड उसको सुनाई भी देने लगी थी आवाजें, क्राइंग साउंड ऑफ अ वुमन outside his window. And there he saw the spirit of a woman holding a bundle in her hands. He thought to himself that it was his subconscious mind playing all kinds of tricks. And उसने क्या सोचा कि उसका जो ये चीजें हैं वो subconscious mind में चल रही हैं. The next morning Ishwaran started asking Mahendra about the sight he had been during the previous night. यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे थे उसके बारे में ईश्वरन ने बातें करी कि मतलब काम के लिए. बट महेंद्र वॉज टू फ्राइटेंड दैट ही डिडंट लेट ईश्वरन कंप्लीट हिज कन्वर्सेशन. वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहता था. ही हरीड ऑफ टू हिज ऑफिस डिटरमाइंड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब. और इतनी जल्दी वो अपने ऑफिस के लिए निकला एंड उसने अपनी जॉब के रिजाइन करने के लिए सोच लिया. एंड लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उसने उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ दिया. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द ईश्वरन द स्टोरी टेलर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी कि किस तरह से ईश्वरन जो है वो थ्रिलिंग स्टोरीज का बहुत ही ज़्यादा शौक था, पढ़ने का भी और सुनाने का भी. जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन के साथ सुनाता था, जेस्चर्स के साथ सुनाता था, वो भी दूसरे को भी लगता था सच में ऐसा ही हुआ है. सो नैरेटिंग जो स्टाइल थी उसकी एंड जो सुनाने की भी जो स्टाइल थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, थ्रिलिंग थी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप लर्निंग. थैंक यू.